Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So this is day 2 for solving lead code problems, and in previous video we have solved these two problems, and now in this video we will solve these two problems. So the today problem is sum of array. So let's see what the problem is saying. So this is the question. Here you can see the problem is saying that given an array ARR, return the sum of all elements. That means we have a element in the array 1 2 3 4, and we need to return their sum. That means 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 4. Their total sum will be 10. So we need to write the program for it. So how we can write the program for it? Let's see. So this is the very simple question. We just need to assign one particular variable like int sum is equal to 0. Okay, and after that we perform loop. So we perform a loop from 0 to length of the array. Okay, so here we can write array dot length for calculating complete length, and for the moving which are present inside the array like 1 2 3 4. So how we achieve this? So for it we need to come up this all the digit by the help of ARRI, and we need to add with sum. So we can write it here like sum plus equal to ARRI. The meaning of this line is same. What is meaning? Sum equal to sum plus ARRI. So the same meaning is of this line. Okay, so this is the basically optimized technique, and this line will calculate complete sum of the this array, and after we need to just return this sum. So we here write return sum. The value which is calculated, that will be, we need to return the clearly shown output will be 10. Okay, so let's compile it and check this is the correct or not. So just wait a minute. So you can see here your output and expected output both are same. So yeah, this is the correct program, and we just need to submit this problem. So it passes all the cases and it is successfully solved. Okay, so I hope this will be clear to you. Now let's move on the next question, that is sum of digit. Okay, so let's see what the problem is saying. Sum of the digit. So basically ये जो question है, in this question you can see ये question ये कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव नंबर n, एक हमारे पास n पॉजिटिव नंबर है, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट, उसमें जितने डिजिट्स हैं उसका सम निकालना है हमको। जैसे हमारे पास 687 का जो हम सम निकालेंगे वो कितना आएगा 21। तो हमें क्या करना है, हर नंबर को सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे अगर 12 लें तो 1 और 2 का सम क्या होगा 3। तो यानी कि जो डिजिट दिया गया है उन सब का सम हमको निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंबर है 453। ठीक है, हमको अगर इसका सम निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एक एक डिजिट अलग करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो टोटल डिजिट इसमें 3 है। ठीक है, अगर हमें एक एक डिजिट अलग करना है तो एक एक डिजिट अलग करने के लिए हम मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम 453 में परसेंटेज का साइन लगाएं और यहाँ 10 से इसे मॉड्यूल कर दें, तो ये जो परसेंटेज का साइन है इसे मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं।
ये मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी जैसे अगर हम 453 में 10 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 45 आएगा, यानी 45 आएगा। लेकिन अगर हम 453 में 10 से मॉड्यूल करेंगे तो ये हमें रिमाइंडर के रूप में 3 देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक डिजिट निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें टोटल सम ऑफ डिजिट निकालना है, ठीक है। जो भी डिजिट आ रहा है उसका सम निकालना है। जैसे अगर हमने पहली बार इसमें ये ऑपरेशन किया तो यहाँ से हमारे पास 3 आया, हम यहाँ पर 3 को काउंट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से 3 को काउंट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट है कि हम जो डिजिट पहले था वो अब नहीं रहना चाहिए। जैसे 453 में था तो अब दोबारा क्या होना चाहिए, 45, ताकि हम एक एक डिजिट निकाल पाए। तो इसके लिए हमें उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी 453 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो अब 45 आएगा। नाउ वी विल राइट अगेन दिस 45 मॉड्यूल 10। तो अगर हम ये लिखेंगे तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर हम इसको अपने सम में ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट हम फिर इसको 45 को यहाँ से डिवाइड करेंगे अगर 10 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 40 नहीं, हमारे पास 4 आएगा। और नेक्स्ट अगर अब हम इसमें 4 मॉड्यूल 10 करेंगे तो फिर से हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको 4 को ऐड कर लेंगे और हमारा जो आंसर है 5 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका इस प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हमको सिंपल 2 वेरिएबल लेना है। एक मैंने नाम लिखा है रिम, रिम का मतलब रिमाइंडर, और एक वेरिएबल लिया है सम। दोनों की इनिशियल वैल्यू को 0 कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक व्हाइल लूप लिया है। व्हाइल लूप को n ग्रेटर देन 0, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए मॉड्यूल ऑपरेटर लगाया है, और हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सम करने के लिए सम में हम उसे ऐड कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी n की, उसको चेंज करना है हमें, तो इसके लिए हमने n/10 लगाया है, जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास सम कैलकुलेट होगा वही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। तो जस्ट अ वेट। So yeah, this is the correct now, and submit. So let's see, it passes all the cases. Okay, so that's all for today. We will meet tomorrow. Thank you.